friends, welcome to Engineering Girls. This is our first video of the series. In this series, we will cover the syllabus of cybersecurity of AKTU BTech 4th semester honors degree. The subject code is HTCS 401 and the name of the subject is Information Theory for Cybersecurity. Now let's check the syllabus of this course. Starting from the first unit, we will focus on Shannon's foundational concepts in information theory, covering entropy leakage and key size bound necessary for secrecy, authentication, and secret sharing. In the second unit, we will delve into secrecy and authentication mechanism, secret sharing, quantum cryptography, and various coding techniques, including block and cyclic code. In the third unit, we will introduce information theoretic security and basic cryptographic methods, including Diffie-Hellman key exchange, AES encryption, and side channel attack. In the fourth unit, we will explore different secrecy metrics, secure source coding principle, differential privacy, and distributed channel synthesis. In the fifth unit, we will cover digital network forensics, public key infrastructure, lightweight cryptography, and the application of electric. Let's get started with the first unit. So the first topic of first unit is Shannon's foundation of information theory. Shannon's theory encompasses several fundamental concepts that revolutionize the understanding of information transmission and communication system. Shannon's theory ने एक revolution दिया था information theory and communication system को. Now let's check the key points of Shannon's theory. Information entropy. Shannon's theory के कुछ key points में हमारा सबसे important point है information entropy. Entropy measure करता है आपके मैसेज के कंटेंट में अनसर्टेनिटी या अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है. इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला हमने यहाँ पे दिया है एंड एंट्रोपी मेजर्स से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं द हायर द एंट्रोपी more secure your information will be and the higher will be unpredictability of your message. So the next point is error detection and correction. Techniques such as checksum, hash function, error correcting codes are derived from Shannon's principle to protect against data corruption and tampering. Shannon's theory के प्रिंसिपल पे एरर डिटेक्शन के कुछ कोड्स डिराइव हुए थे एंड जो चेकसम एंड हैश फंक्शन यूज़ किया जाता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए वो सब शेनॉन्स के प्रिंसिपल ने ही डिराइव किया था जिससे आप अपने डेटा को करप्ट होने से बचा सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए शेनॉन्स थ्योरी ने सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले किया था. एक सिग्निफिकेंट रोल था जो डिफाइन करने के लिए कि आपकी डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करके. So the next point is channel capacity. Shannon's defined the maximum rate at which information can be reliably transmitted over a communication channel known as channel capacity. Shannon's theory की कुछ डेफिनेशन में एक डेफिनेशन था चैनल कैपेसिटी, जिसका मतलब ये है आपको मैक्सिमम कितना बड़ा चैनल चाहिए जिससे आपका मैसेज जो है वो रिलायबली ट्रांसफ़र हो जाए. So understanding channel capacity helps in designing system that can securely handle the desired amount of data, optimizing both performance and security. अगर हमें पता होगा कि हमारी चैनल कैपेसिटी कितनी है या फिर हमारा इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा है तो उस बेसिस पे हम अपने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिससे इन्फॉर्मेशन सिक्योरली और ऑप्टिमाइजली ट्रांसफ़र किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये सबसे मेन पॉइंट है शेनॉन्स थ्योरी का और किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे मेन पॉइंट है, जिसमें आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको पता होना चाहिए या फिर ओनली अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन एक्सेस योर डेटा. इंटीग्रिटी मीन्स आपका डेटा किसी भी जगह पे मौजूद है, चाहे क्लाउड पे है, चाहे किसी बैकअप पे है, कहीं पे भी है, वो डेटा बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए और जहाँ जहाँ है वो हर जगह एक ही डेटा होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी. जिस टाइम पे आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हो वो आपके लिए अवेलेबल हो एंड ओनली अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी अवेलेबल, यानी कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, किसी अनऑथराइज्ड यूज़र के लिए वो मैसेज अवेलेबल नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. Protocols such as SSL, TLS are used for secure web communication, ensures that the data transmission over the internet is encrypted and secure from eavesdropping and tampering. ये थ्योरी भी शेनॉन्स ने दी थी. शेनॉन्स थ्योरी के प्रिंसिपल पे ही SSL और TSL को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे वेब कम्युनिकेशन सिक्योरली हो सकता है.
Next point is steganography and information hiding. Steganography is the process of hiding information within other. Shannon's theory helps in understanding how much data can be hidden within a carrier signal without detection. Next topic is random variable. Random variable is a variable whose possible values are outcomes of a random phenomena. किसी भी रैंडम फिनोमिना जिसको हम प्रोबेबिलिटी फिनोमिना कहते हैं, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसकी वेरिएबल्स को रैंडम वेरिएबल्स कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. इस चीज़ को हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं. रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस. डिस्क्रीट में आपके फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, फाइनाइट नंबर और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल रोल ऑफ अ डाइस, नंबर ऑफ हेड्स इन कॉइन फ्लिप एक्सेट्रा. कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर रेंज पे बात की जाती है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं हाइट, वेट एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन px इज इक्वल्स टू x. और अगर पूरे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी, वो होता है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन. कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे, जिसकी वैल्यू अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरे रेंज पे तो 1 आएगा. नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स. डिस्क्रीट में आपका आता है बाइनोमियल, पॉइजन और पास्कल, और कॉन्टीन्यूअस में आता है आपका नॉर्मल, लॉग नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल. इसमें आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स में आपने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ रखा है, तो वहाँ से आप एक बार फार्मूला देख सकते हैं, बाकी इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनसर्टेनिटी, एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन मेजर्स. एंट्रोपी और अनसर्टेनिटी रेफर्स to the measure of randomness or unpredictability in data, which is crucial for accessing the strength of encryption and security system. एंट्रोपी मेजर करता है आपके डेटा में कितनी रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर को कंसिडर करना, ताकि आपका मैसेज जो है वो सिक्योर रहे. अब इसके कुछ एडवांटेजेस और की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है पासवर्ड स्ट्रेंथ. अगर आपका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो कंसीडर करता है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है. क्रिप्टोग्राफिक कीज़. हाई एंट्रोपी मेजर्स दैट द कीज़ आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट और रेप्लिकेट. अगर एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो उससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका की जो है वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. इंफॉर्मेशन लीकेज. बाय असेसिंग the entropy of observed data, security professional can determine if sensitive information might be inferred by an attacker. अब ये हम कैसे मेजर करते हैं. एक पॉइंट आता है आपका म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का, जो हम आगे पढ़ेंगे. अगर आपके मैसेज में और आपके साइफर टेक्स्ट में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, जिसका मतलब है आपके एंट्रोपी वीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंसिटिव डेटा जो है वो वल्नरेबल है और अटैकर उसको इन्फर कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. अ सडन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन नेटवर्क ट्रैफिक माइट सजेस्ट एन ऑनगोइंग अटैक. अगर एंट्रोपी सडनली इंक्रीज़ हो गया नेटवर्क में तो उससे आपको अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. सेग्नोग्राफी डिटेक्शन. एनोमोलस एंट्रोपी लेवल इन नेटवर्क पैकेट कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हिडन डेटा. अगर आपकी एंट्रोपी अलग तरीके से मेजर किए जा रहे हैं तो उसमें हिडन डेटा के होने के चांसेस हो. So the next topic is information leakage, quantifying leakage and partition. Let's start with information leakage. It refers to the unintended or unauthorized transmission of information from within an organization to an external recipient. Unintentionally और unauthorizedly अगर आपका मैसेज ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन लीकेज कहते हैं. It occurs when sensitive information is unintentionally disclosed, potentially leading to security breach. ये कब होता है? जब आपके नेटवर्क में अलग अलग चैनल्स में दिक्कत आती है और ये वेरियस इसके मेथड्स हैं, सॉफ्टवेयर बग या फिर डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस में अगर कुछ कमी होती है तो उस वजह से इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है. So the next point is quantifying leakage. Quantifying leakage helps in understanding the extent of the vulnerabilities and implementing measures to mitigate it.
अगर हम लीकेज, हमारे इन्फॉर्मेशन में कितनी लीकेज है, अगर उसको समझ लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ कितनी वीकनेस है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, और हम क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें। इन्फॉर्मेशन लीकेज के कुछ की पॉइंट्स हैं। एंट्रोपी बेस्ड मेजर्स, हम कैसे उन्हें मेजर कर सकते हैं। मेजर द अनसर्टिनिटी इन अ डेटा सेट। लोअर एंट्रोपी इन लीक्ड इन्फॉर्मेशन इम्प्लॉयज हायर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ग्रेटर लीकेज। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है उसमें एंट्रोपी कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो बहुत ही हाई चांसेस है कि उसको रिवील किया जा सके, और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है लीकेज का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। इस बारे में मैंने पहले बताया था। मेजर्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वन रैंडम वेरिएबल कंटेन्स अबाउट अनदर। आपका वन रैंडम वेरिएबल यहाँ पर साइफर टेक्स्ट है और दूसरा रैंडम वेरिएबल आपका प्लेन टेक्स्ट है। अगर आपके साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लीक हुआ है और प्रिडिक्ट करना उसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़, आपके आइडियल ऑप्शन ये है कि आपके साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट का म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टीशन एंड लीकेज। इट रिफर्स टू डिवाइडिंग डेटा और सिस्टम इनटू सेपरेट आइसोलेटेड सेगमेंट टू कंट्रोल एंड लिमिट लीकेज। लीकेज को कम करने के लिए हम अपने डेटा को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में और उन्हें अलग अलग लोकेशंस पे सेव करते हैं, जिसको हम पार्टीशन लीकेज कहते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स क्या हैं। आइसोलेशन प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्ट्रिक्ट लीकेज बाय आइसोलेटिंग सेंसिटिव डेटा। अगर हम डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होगा उसको अलग रेस्ट्रिक्ट लोकेशन पे सेव करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो कम कर सकें। इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन वो आपका वर्चुअल मशीन होता है जिसमें आपका डेटा, सेंसिटिव डेटा स्टोर होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपके लिस्ट ऑफ एक्सेस होते हैं कि किस किस को आपके डेटा का एक्सेस देना है। नेटवर्क सेगमेंटेशन का मतलब होता है आपके डेटा को पैकेट्स में तोड़ के अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेस कंट्रोल। लिमिट्स विच यूज़र और सिस्टम कैन एक्सेस सर्टेन डेटा, देयर बाय रिड्यूसिंग लीकेज रिस्क। अगर हम ऑथराइजेशन की लिमिट कर दें कि आपके डेटा को, इस पर्टिकुलर डेटा को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसमें आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा और रिस्क से बच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा सैनिटाइजेशन। इंश्योर्स दैट डेटा शेयर्ड बिटवीन पार्टीशन डज नॉट कंटेन सेंसिटिव डेटा। पार्टीशंस के बीच में जो डेटा शेयर हो रहा है उसमें कोई सेंसिटिव डेटा नहीं होना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स है। डेटा मास्किंग एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को इनकोड कर देना एक ऐसे फॉर्म में जो ह्यूमन रीडेबल ना हो। एंड डेटा मास्किंग एक टेक्निक होती है जिसमें आप अपने डेटा को ओवरलैप कर देते हैं एक नॉन सेंसिटिव डेटा से, जिससे आपका सेंसिटिव डेटा जो है वो हाइड रह जाता है और साथ ही साथ सेफ भी रहता है और सिक्योर। सीक्रेसी, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, ensures that information is accessible only to those authorized to have access. सीक्रेसी ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस हो जिनके पास उसकी ऑथराइजेशन हो। इट इज़ अ की प्रिंसिपल इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटा को प्रिवेंट करने का की प्रिंसिपल है ये। अब सीक्रेसी कैसे इंश्योर हम कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें आपका आता है एक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब डेटा को इनकोड कर देना इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी रीड बाय अ ह्यूमन until or unless some algorithm is used to decrypt that data. So encryption आपके दो टाइप के होते हैं, symmetric encryption और asymmetric encryption. Symmetric encryption uses a single key for both encryption and decryption. encryption and decryption दोनों साइड के लिए सिंगल की यूज़ की जाती है। asymmetric की में आपका रिसीवर और सेंडर दोनों के पास अलग अलग कीज़ होती है एंड एक पब्लिक एंड प्राइवेट की होती है दोनों के पास, जिसकी वजह से इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। इसमें एक एल्गोरिथम आपका आता है RSA, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल दो टाइप का है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल असाइंस परमिशंस बेस्ड ऑन द यूजर्स रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में हम एक्सेस उन इंसान के रोल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा आदमी है, उसे कितना एक्सेस किस डेटा को मिलना चाहिए। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एक्सेस राइट्स आर रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी बेस्ड ऑन मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी।
मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से रेगुलेट की जाती है कि इस पर्टिकुलर लेवल की सिक्योरिटी के लिए कौन सा एक्सेस किसको देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा मास्किंग एंड एनोनिमाइजेशन. सो द डेटा मास्किंग obscures specific data within a database to prevent unauthorized access while maintaining its यूजिबिलिटी. इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था. आपके डेटा के ऊपर एक नॉन सेंसिटिव डेटा को मास्क किया जाता है जिससे आपका डेटा प्रिवेंट भी रहता है और उसकी यूजिबिलिटी भी मेंटेन रहती है. एनोनिमाइजेशन इरिवर्सिबली रिमूव्स आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा सेट इंश्योरिंग प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए एनोनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है. So the next topic is authentication. Authentication is the process of verifying the identity of a user, device or entity before granting access to resources in a system. किसी भी सिस्टम में किसी भी यूज़र को एक्सेस देने से पहले, किसी यूज़र को या किसी डिवाइस को या किसी एंटिटी को एक्सेस देने से पहले वेरिफिकेशन को ही हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं. इट इंश्योर्स दैट ओनली लेजिटिमेट यूज़र्स कैन एक्सेस द डेटा. ऑथेंटिकेशन की वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस डेटा को या इस सिस्टम को सिर्फ लेजिटिमेट और ऑथराइज्ड यूज़र ही एक्सेस कर रहा है. आपके ऑथेंटिकेशन यहाँ पे 3 टाइप्स के बताए गए हैं. सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ एक ही फैक्टर पे रिलाई करता है, यूजुअली अ पासवर्ड और पिन. ये बहुत वीक ऑथेंटिकेशन माना जाता है जो कि ब्रूट फोर्स या फिर फिशिंग अटैक से इन ऑथेंटिकेशन को डिक्रिप्ट किया जा सकता है या इन पे अटैक किया जा सकता है. नेक्स्ट फैक्टर है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है आइडेंटिटी के लिए. ये एक हाईली सिक्योर ऑथेंटिकेशन माना जाता है क्योंकि अगर किसी अटैकर को आपका पासवर्ड पता भी चल गया है उसके बाद भी एक और सिक्योरिटी अवेल रहेगी जिसकी वजह से वो आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा. इसमें हम 2-3 फैक्टर्स को यूज़ करते हैं. जैसे हो सकता है कि एक पासवर्ड हो और उसके साथ साथ OTP हो. जैसे हम क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले हमें उसकी कार्ड डिटेल्स डालनी होती है, CVV डालना होता है. अगर किसी अटैकर के पास ये सारी डिटेल्स होंगी तब भी वो विदाउट OTP आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता. नेक्स्ट फैक्टर आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. यूजेस यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट सच एज फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन. हर इंसान का फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट्स और आइरिस जो है वो अलग अलग होता है. तो उस बेसिस पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है. लेकिन आज की डेट में बायोमेट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है क्योंकि हम अपने फिंगरप्रिंट्स हर जगह यूज़ करते हैं एंड फिंगरप्रिंट्स को कॉपी करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इवन आइरिस स्कैन भी पहले के टाइम पे बहुत पावरफुल था लेकिन आज की डेट में चाइना ने आइरिस को भी कॉपी करना शुरू कर दिया है. तो आइरिस स्कैन भी अभी उतना सिक्योर नहीं रहा है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ सीक्रेट शेयरिंग. Secret sharing involves dividing a secret into multiple parts and distributing these parts to a different participants and requiring a minimum number of parts to reconstruct the original secret. इसको डिवाइड करते हैं हम सेंटेंस को. सीक्रेट शेयरिंग इन्वॉल्व करता है कि आपके डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड उसको डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दें एंड उस डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही मिनिमम पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो. इससे आपका सिक्योर शेयरिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है. दिस मेथड enhances security by ensuring that no single participant has enough information to compromise the secret. इस मेथड से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि किसी पार्टिसिपेंट के पास अगर कोई डेटा है भी तो वो इतना कंप्लीट नहीं है कि अटैकर उसको यूज़ करके डेटा प्रिडिक्ट कर सके. वन वेल नोन सीक्रेट शेयरिंग एल्गोरिथम इज शामिर्स सीक्रेट शेयरिंग. शामिर्स सीक्रेट शेयरिंग एल्गोरिथम जो है वो बहुत ही वेल नोन एल्गोरिथम है सीक्रेट शेयरिंग का. इसके की पॉइंट्स क्या है? पहले हम डेटा को डिवाइड करेंगे, फिर एक पॉलिनोमियल के थ्रू सीक्रेट कोड जनरेट करेंगे जो यूज़ होगा आपके डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करने में. फिर लास्ट पॉइंट है रिकन्स्ट्रक्शन. उस पॉलिनोमियल के से हम डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रूवेबल सिक्योरिटी एंड कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी. प्रूवेबल सिक्योरिटी इट मीन्स शोइंग विद क्लियर मैथमेटिकल प्रूफ्स दैट अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड इज़ सेफ. प्रूवेबल सिक्योरिटी का मतलब ही है कि हमने अपने सिक्योरिटी को प्रूव कर दिया है कि मैथमेटिकली प्रूव किया है कि ये इंक्रिप्शन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ है. दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट इफ़ समवन कुड ब्रेक द मेथड they would also be able to solve a very tough math problem which is considered nearly impossible.
ये इंश्योर करता है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। प्रूवेबल सिक्योरिटी की एग्जांपल आता है आपका RSA इंक्रिप्शन। सिक्योरिटी रिलाइज ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज कंपोजिट नंबर्स। फिर आपका आता है एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी। सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन द हार्डनेस ऑफ द elliptic curve discrete logarithmic problem. Next point is computational security. It refers to the concept that a cryptographic system is secure as long as the computational resources required to break it. Computational security का मतलब ये है कि आपके पास भले ही computational लॉजिक्स अवेलेबल है कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसके बावजूद भी आपका इंफॉर्मेशन जो है वो हाईली सिक्योर हो। This approach acknowledges that while absolute security may be unattainable, practically security can be achieved. ये आपका इंश्योर करता है कि इन प्रैक्टिकल एब्सोल्यूट सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम प्रैक्टिकल सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस होते हैं TLS, SSL प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब TLS प्रोटोकॉल में क्या है? यूज़ कंप्यूटेशनल सिक्योर एल्गोरिथम एंड की एक्सचेंज एल्गोरिथम टू सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये कंप्यूटेशनली सिक्योर एल्गोरिथम का यूज़ करता है और की एक्सचेंज एल्गोरिथम को यूज़ करता है ताकि आपके इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो हाईली सिक्योर रहे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी relies on computational security to ensure the integrity and immutability of transaction. The last topic of this unit is symmetric cipher. A symmetric cipher is a type of cryptographic algorithm used to encrypt and decrypt data. Symmetric cipher एक encryption algorithm है जो encryption and decryption के काम आता है। सिमेट्रिक साइफर में हम सिंगल की पे रिलाई करते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक हाउ द सिमेट्रिक साइफर वर्क्स। सबसे पहले है की जनरेशन। अ सीक्रेट की इज़ जनरेटेड बाय अ की जनरेशन एल्गोरिथम। एक की जनरेशन एल्गोरिथम की मदद से हम सीक्रेट की को जनरेट करते हैं। ये सीक्रेट की कॉन्फिडेंशियल होता है और दोनों कम्युनिकेशन पार्टी के बीच में सिक्योरली शेयर होता है, इस तरीके से कि कोई भी अटैकर उस पर अटैक ना कर सके। Next point is encryption. Plain text is combined with the secret key using the encryption algorithm to produce cipher text. नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, हम की की मदद से प्लेन टेक्स्ट में कंबाइन करते हैं एंड देन एक साइफर टेक्स्ट जिसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कहा जाता है वो जनरेट करते हैं यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये साइफर टेक्स्ट आपका एक रैंडम होता है और इंटेलिजिबल विदाउट द सीक्रेट की के बगैर ये रैंडम साइफर टेक्स्ट किसी काम का नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ डिक्रिप्शन में हम सीक्रेट की को दोबारा साइफर टेक्स्ट से कंबाइन करते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो सके। तो साइफर टेक्स्ट के 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले की जनरेट होगा, देन की के मदद से और प्लेन टेक्स्ट की मदद से इनक्रिप्टेड और साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, देन ये रिसीवर पार्टी की तरफ की को दोबारा यूज़ करके साइफर टेक्स्ट में हम प्लेन टेक्स्ट को जनरेट करेंगे। सो द नेक्स्ट इज़ discuss some common ciphertext. Advanced encryption standard, data encryption standard, DDES। ये कुछ कॉमन सिमेट्रिक साइफर है जो सेम की हेल्प से इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को प्रोसेस करते हैं। सो फर्स्ट इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वाइडली यूज सिमेट्रिक साइफर स्टैंडर्डाइज बाय US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट्स की लेंथ ऑफ 128, 192 एंड 256 बिट एंड कंसिडर्ड सिक्योर फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एल्गोरिथम माना जाता है क्योंकि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे राउंड्स प्रोसीड किए जाते हैं डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिमेट्रिक साइफर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द US गवर्नमेंट इन 1970s, यूटिलाइजेज द 56 बिट की लेंथ विच इज़ कंसिडर्ड इनसफिशिएंट फॉर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ड्यू टू एडवांसेस इन डिक्रिप्ट एनालिसिस। डेटा इंक्रिप्शन एडवांस का ही लोअर वर्जन है जहाँ पे आपका की जो है वो 56 बिट का होता है जो कि इनसफिशिएंट होता है आज की टाइम के मॉडर्न मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए। इसी का एडवांस वर्जन है आपका एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ DDES, अ वेरिएंट ऑफ DES दैट अप्लाइज द DES एल्गोरिथम 3 times with different keys.
DES को ही 3 टाइम इम्प्लीमेंट करना ही ट्रिपल DES कहलाता है। प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड सिक्योरिटी कंपेयर टू DES बट स्टिल स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट दैन AES, क्योंकि डेटा इंक्रिप्शन में सिंगल राउंड होता है जो कि 56 बिट की लेंथ होता है, एंड ट्रिपल DES में उस 56 की लेंथ को ही 3 बार इम्प्लीमेंट किया जाता है। और वहीं अगर एडवांस इंक्रिप्शन की बात करें तो हमारा की लेंथ जो है वो 128, 192 और 256 बिट होता है, जिसके लिए 10, 12 और 14 राउंड्स यूज़ होते हैं। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा हाईली सिक्योर आपका एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी हैव सो फार completed the first unit. Thank you.